Good afternoon and warm welcome to all the participants. We are extremely delighted today to have Dr. Rajendra Singh ji, the Waterman of India, with us. We are pinching ourselves one more time to actually feel and realize that Dr. Rajendra Singh ji is actually with us. Warm good evening to you, sir, and welcome on behalf of ICFAI Group. We will have this program for 1 hour. 20 minutes is your opening talk. On behalf of Professor Prasad and everybody who has joined today, I once again welcome you, sir. I'll do a brief introduction and I'll share my screen. These are WiseViews leadership conversations, which we hold every Friday. And especially for this Friday, we have taken time from you at 3:30. Otherwise, we hold it at 6:30 p.m. on all Fridays. Thank you for agreeing to speak with us, sir. Today's topic, ladies and gentlemen, is water governance in India, issues and insights. Dr. Rajendra Singh ji does not need any introduction, but for the record, I will do one. He is widely recognized as the Waterman of India. He emerges as a steadfast advocate and practitioner of water conservation and environmental stewardship. Born in 1959 in Dola village, in Uttar Pradesh, Dr. Singh has dedicated his life to addressing India's pressing water issues with a holistic and community-driven approach. While India grapples with a multifaceted water crisis encompassing scarcity, pollution, overuse, and inadequate governance, driven by factors such as population growth, urbanization, industrialization, and outdated infrastructure, this very crisis necessitates urgent and comprehensive solutions. Recognizing this gravity of the situation, Dr. Singh has been at the forefront of initiatives to transform water governance in the country. Dr. Singh firmly believes that addressing water problems requires not just scientific and technological solutions, but also community participation, effective policies, and local wisdom. In 1985, Dr. Singh, Ayurveda medical practitioner, he reached Alwar district, which faced severe groundwater depletion and the amendment of traditional water management practices. With the establishment of his non-profit organization called Tarun Bharat Sangh, Dr. Singh embarked on a mission to revive over 10,000 rainwater harvesting structures using community-driven decentralized water management systems, particularly the traditional johats. As the founder and president of Tarun Bharat Sangh, Dr. Rajendra Singh continues to inspire a global movement towards sustainable water management, earning him the title of the Waterman of India. His unwavering efforts embody a profound commitment to nature, humanity, and the pursuit of a harmonious coexistence with the environment. His innovative strategies include empowering local communities, emphasizing the role of women in water conservation campaigns, and instilling water literacy. Dr. Singh's efforts extend beyond Rajasthan, encompassing projects such as Save the River Ganga campaign and climate change adaptation through water management in eastern Rajasthan. He has got several accolades. He is acknowledged internationally. Dr. Singh received prestigious awards like the Raman Magsaysay Award in 2001, the Jamnalal Bajaj Award in 2005, and the Stockholm Water Prize in 2015. The Guardian listed him among the 50 people who could save the planet in the year 2008. Dr. Singh's dedication goes beyond India. He initiated Water Ethics, Justice, and World Peace Tour in 2015, covering over 20 countries in Africa, Central and West Asia, and Europe. His commitment to nature, non-violence, and community involvement exemplifies a Gandhian ethos. Thank you very much, sir, and warm welcome to this 134th WiseViews Leadership Conversation. I will take just one moment to introduce my esteemed colleague. Professor R. Prasad is the Senior Director in Academic Wing. He is there on the screen. He brings with himself a rich experience of 3 decades. He is an alumnus of IIT Bombay and IIM Kolkata. And he is here. Welcome, Professor Prasad. Thank you very much. I'll stop sharing the screen. And now I request Dr. Rajendra Singh ji to give his opening remarks. And we are all ears, sir. We have been waiting for you to help us get this message of water management in this country. And probably we'll do around 20 minutes of talk. And after that, we'll begin the Q&A. All the members in the audience can participate and wait till then to raise your hands. We will open the mic for you subsequent to this introduction. Over to you, sir. Thank you once again. Thank you, Sudhakar ji, Dr. Prasad,
and friends who is connected with this webinar. Today we discuss about our past, present and future with the water governance. You know, in Indian history, the 12,500 years before, there is a अथर्ववेद says जब जनता विमूढ़ हो जाती है तो प्रकृति नाराज होती है तो संकट आता है, प्रलय होता है। अब ये जो संकट और प्रलय है, इस प्रलय से इंसानों ने अपनी अपनी विजडम से, अपने नॉलेज सिस्टम से बहुत सारे समाधान दुनिया में किए हैं। मैं आपको एक राजस्थान के समाधान, हाँ बहुत जगह पर हमने किए, लेकिन चंबल का समाधान बताता हूं। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये 4 स्लाइड्स हैं। ये चारों स्लाइड्स आपको बताती हैं कि जब ये नदियां सूख गई थी, जब इनमें पानी नहीं था, तब यहाँ के जवान लड़के अपनी बंदूकें उठाकर इल्लीगल माइनिंग चलवाते थे और शहरों में जाके लूटपाट करते थे। ये डाकू नहीं थे, डाकू तो आजकल दिल्ली बंबई में ज्यादा रहते हैं। ये बेचारे तो मजबूरी में, लाचारी में, बेकारी में, बीमारी में दूसरों को मारते थे और खुद भी मरते थे। तो इनकी जिंदगी में डर था और डर के कारण इनकी जिंदगी तबाह थी। जब इनको लगा कि हम इस डर के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे भी समझ में आया कि ये डाकू नहीं है, ये तो लाचारी, बेकारी, बीमारी में बंदूक उठाए हुए हैं। तो हमने इनके साथ मिलकर पानी का काम शुरू किया। 12 साल के पानी के काम के बाद ये जो आप नदियां 4 देख रहे हैं बहती हुई, पूरे साल पेरेनियल रिवर बहने लगी। और ये जो पेरेनियल रिवर है, ये पेरेनियल रिवर आपको बताती है कि ये कुआं है जिसमें बच्चे नहा रहे हैं, बाथिंग द चिल्ड्रन। कुएं में नीचे, कुएं का लेवल पानी का ऊपर आ गया है। तो धरती का पेट जब पानी से भरता है तो फिर ये नदियां बहने लगती हैं। आप ये देखेंगे, चंबल की 2 नदियां हैं, शेरनी और पार्वती। इसके कैचमेंट एरिया में हमने 300 से ज्यादा छोटे बांध जोहड़ बनाए, और इन कैचमेंट एरिया में जो बांध जोहड़ बने, उसके कारण जो वहां पानी आया, उसमें से जो लोगों की जिंदगी में पानी ने वापस रिवर्स करके खेती करने के काम में लगाया, उससे वहां की परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। और ये बिना पैसे के काम है। हमने कभी किसी सरकार से एक पैसा नहीं लिया सुधाकर जी। ये सारा काम हमारी कम्युनिटी की, जो अपनी कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट था, और जो कम्युनिटी की गवर्नेंस थी, गवर्नमेंट कम्युनिटी के मन था, उससे ये जो सॉल्यूशन है ये हमें मिला। और इस सॉल्यूशन के कारण अब हमारी उस इलाके में जो, जब नदियां सूखी तो सिविलाइजेशन सूख जाती है, सिविलाइजेशन मर जाती है। जब नदियां बहने लगती है तो सिविलाइजेशन रिजुनेट हो जाती है। तो जब नदियां सूखी थी तब हमारे लोग बंदूक लिए लूटपाट करते थे, जब नदियों में पानी आया तो हमारे लोग खेती करने लगे। तो ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है, ये जो नॉन वायलेंस इकोनॉमी है, ये नॉन वायलेंस इकोनॉमी स्टार्ट विद द लव ऑफ नेचर, एंड दिस लव स्टार्ट रेस्पेक्ट ऑफ नेचर। सो जब लोगों के मन में ये सम्मान आया तो हमारी सूखी नदियां बहने लगी, और नदियों में पानी आया तो खेती होने लगी। तो इसको यदि आप देखें, शास्त्रों में थोड़ा देखें, ये जो सूत्र है, ये सूत्र अथर्ववेद का सूत्र है। वो कहता है कि जब इंसान विमूढ़ होता है तो उसकी आत्मा और शरीर ये दोनों डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और तब उसका ज्ञान का जो चक्षु है वो विद्या को स्पष्ट रूप में देखने के लिए लालायित होता है। लेकिन कष्ट में, ये जो कष्ट है, ये कष्ट हमारी धरती पर इसलिए ज्यादा बढ़ा कि आज हमारी विद्या वो होती है जिसको हम अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में एक्सपीरियंस करके उसको एक्ट करते हैं। तो वो विद्या से जो हमें अनुभूति होती है, वो हमें
धरती पर, प्रकृति पर प्यार बढ़ा के समरसता से काम करना सिखाती है। लेकिन शिक्षा हमें इन सब चीजों से डिसइंटीग्रेट कर देती है। शिक्षा हमारी सेल्फिशनेस को बढ़ाती है। विद्या हमारे कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाती है। बस ये डिफरेंस यदि हम समझ लेंगे कि व्हाट इज द विद्या एंड व्हाट इज द शिक्षा, तो हम ये जो हमारी धरती पर आज क्लाइमेट चेंज का डिजास्टर है, ये जो हमारे इकोलॉजिकल डिजास्टर है, इन सब से हम मुक्ति पा सकते हैं। इससे हमें यदि मुक्ति पाना है, इस क्लाइमेटिक इमरजेंसी से हमें यदि बचना है, तो फिर हमें शिक्षा और विद्या इन दोनों को समझ के यदि हम इनको इंटीग्रेट कर सके, तो ये जो हमारे सामने क्राइसिस है, इस क्राइसिस के सॉल्यूशन हम ढूंढ पाएंगे। जिसको सुधाकर जी गवर्नेंस कह रहे हैं, उस गवर्नेंस की रिलेशनशिप इस इंटीग्रेशन में ढूंढनी पड़ेगी। यदि उस गवर्नेंस की रिलेशनशिप को हम इस इंटीग्रेशन में ढूंढेंगे, तो हम एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन दे सकेंगे। If we are interested, really interested in a solution or the solution with sustainability, तो हमें फिर इसको इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा। इसको यदि हमें देखना है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारी धरती है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को जो प्यार करने वाले हैं और इस धरती को जो द्वेष करने वाले हैं, वो कौन है? धरती को प्यार करने वाले वो लोग होते हैं जो प्रकृति से सचमुच हमेशा आत्मसात रहते हैं, और वो जो प्रकृति को बचाने का काम करते हैं, वो कभी किसी का मानसिक आघात नहीं पहुंचाते, वो किसी पर अतिक्रमण भी नहीं करते। लेकिन जो द्वेष में जीते हैं, वो इस प्रकृति को और हमारी सृष्टि को बहुत आघात पहुंचाते हैं। और ऐसे लोगों को अथर्ववेद में कहा, जरा इसको पढ़ लीजिए, योनो द्वेष्ट पृथ्वी वी प्रत्यंड विद्यासन यो वधेन। मतलब ऐसा इंसान जो प्रकृति को कष्ट देता है, जो पृथ्वी को कष्ट पहुंचाता है, उसका वध कर दो। ये वध करने का संदेश आपको अथर्ववेद दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं सुधाकर जी, ये अथर्ववेद दे रहा है कि जो इस प्रकृति को कष्ट पहुंचाता है, ये नष्ट करता है, वो हमारा शत्रु है। और ये यदि हम प्रकृति के प्यार की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, तो फिर हम विद्या की तरफ विमुख, विद्या की तरफ बढ़ते जाएंगे। और फिर हमारा जो ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का और स्केर्सिटी, ड्राउट एंड फ्लड का जो आज क्राइसिस है, उस क्राइसिस का सॉल्यूशन हम ठीक में एक्सप्लोर कर पाएंगे इन ए सस्टेनेबल वे। और ये तब ढूंढ पाएंगे जब हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। हु इज द भगवान? भगवान मीन्स भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि सूरज और न से नीर। ये जो 5 एलिमेंट है, इन 5 एलिमेंट्स का रोल इन आवर लाइफ एंड रोल ऑफ द प्लैनेट एंड रोल ऑफ द होल प्लैनेट ऑफ द 5 एलिमेंट, मैं समझता हूं कि इन पंच महाभूतों को, भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, आ से अग्नि और न से नीर, भय गे वे आ ने, भगवान। ये भगवान तमिल भी भगवान में बोलते हैं, संस्कृत भी भगवान को जानते हैं, हिंदी में भी भगवान जानते हैं। ये जो भगवान शब्द है, ये इस प्लैनेट में 5 पंच महाभूतों के योग से बना है। जब तक हम भारत के लोग भगवान को पहचानते थे, तभी तक हम दुनिया के गुरु थे। दैट टाइम वी आर रियली ग्लोबल टीचर, वी कैन टीच टू दिस प्लैनेट। टुडे वी कांट टीच टू दिस प्लैनेट। हम आज दुनिया को नहीं सिखा सकते। हम इसलिए दुनिया को सिखा पाते थे कि हम भारतीय लोग उस जमाने में नीर, नारी और नदी को नारायण मानते थे। ये जो नीर, नारी, नदी को नारायण मानने का जमाना है, ये राम के काल तक था, जब तक हम इनको बहुत रेस्पेक्ट करते थे। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे
इस पृथ्वी को और इस पानी की गवर्नेंस को ठीक से समझे। अभी देखिए, अथर्ववेद में ही मैं दूसरा श्लोक आपके सामने रख रहा हूं कि इस पृथ्वी पर जो भी जल धाराएं हैं उनको अविरलता और निर्मलता से बहने दो। आज मेरी गवर्नमेंट भी बराबर बोल रही है कि वी नीड द अविरलता निर्मलता, बट सारे काम उसके अपोजिट कर रही है। ये अथर्ववेद में ये बात कही है कि ये जो नदियां हैं इनको आप आजादी से बहने देंगे तो इनका जो स्वरूप है वो हमारे लिए पोषक होगा। ये जलधाराएं हमारे प्लेनेट को और हमें नरिश करती हैं, इसलिए इनको कदाचित भी मत रोको। पर तुम जानते हो कि भारत में हमने सारी नदियों को बांध के उनकी हत्या कर दी है। अब मुझसे इंजीनियर पूछ सकते हैं कि भाई आप यदि इनको नहीं बांधने दोगे तो हम अन्न कैसे उत्पादन करेंगे, इरिगेशन कैसे होगा, बिजली कैसे होगी। मैं उन सबको जवाब देना चाहूंगा, वो मुझसे यदि ये सवाल पूछेंगे तो मैं उनके लिए छोड़ देता हूं। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि यही भारतीय ज्ञान तंत्र अथर्ववेद हमें नदियों की अविरलता निर्मलता और उसके किनारों की हरियाली और अवरोध बहने को, प्रवाहित करने को, जिसको आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में इन्वायरमेंटल फ्लो कहते हैं, उस इन्वायरमेंटल फ्लो को हमारे शास्त्रों में अथर्ववेद में भी बहुत जोरों से हमसे कहा था। वो ही अथर्ववेद, सेम अथर्ववेद कहता है कि वो ही कहता है कि हम यदि पृथ्वी को हर्ट करने वाले को मानते हैं तो हमें पृथ्वी को प्यार करना है, तो पृथ्वी पर आने वाली एवरी ड्रॉप, हर बूंद हमें स्टॉप करने का, उसको सहेजने का, उसका संरक्षण करने का हक हमें देता है। और हमें वो हक जो है वो पूरी पृथ्वी की जो लाइवलीहुड है, लाइफ है एंड हैप्पीनेस है, उसको प्रोटेक्ट करता है। वो प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो बादल से निकली हर बूंद हमारे लिए है। वही अथर्ववेद कहता है नदियों को मत रोको, पर जो बादल ने पानी की बूंदें दी हैं उनको मर्जी आए जहां रोक लो, वो तुम्हारे लिए हैं। उनको तुम, उनसे धरती का पोषण होगा, प्रकृति का पोषण होगा, हरियाली बढ़ेगी। वही शास्त्र कहता है आपहा ब्रह्मास्मि, मीन्स मैं, आपा माने जल, मैं जल हूं और मैं ब्रह्मा हूं और मैं ही ब्रह्मांड हूं और मैं ही इस ब्रह्मांड को चलाता और बनाता हूं। इसका मतलब ये जो जल है, इससे 4.5 अरब साल पहले इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर पानी की बूंद बनाई थी, जिसको हम महाविस्फोट कहते हैं। इसलिए हमें यदि गवर्नेंस का मसला समझना है तो फिर पानी की इस हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। और इस हिस्ट्री को हम समझे बिना यदि नहीं काम करेंगे तो आज हमें दुनिया में देख सकते हैं कि दुनिया के चैलेंजेस क्या हैं। दुनिया के चैलेंजेस, अब जब भी अफ्रीकन और सेंट्रल एशियन कंट्री से लोग यूरोप के शहरों में जाते हैं तो उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, द स्केर्सिटी ऑफ वाटर और सरप्लस ऑफ द वाटर, द बोथ इज ए डिजास्टर। द वाटर if surplus, so disaster; if scarcity of water, that is also disaster. So ये जो डिजास्टर है ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, एंड दिस, ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट हेट बढ़ रही है दुनिया में। इस वक्त पूरी दुनिया में हेट है। जब भी सीरिया के लोग लेबनान होते हुए जर्मनी गए, जर्मनी की चांसलर ने उनके लिए रास्ता खोल दिया, तो चांसलर को हटा दिया वहां की जनता ने, जर्मनी। ये जो हिस्ट्री है ये कोई पुरानी नहीं है, अभी पिछले 5-6 सालों की हिस्ट्री है। इस वक्त जनता, दुनिया की जनता अब ना प्रकृति को प्यार करती है ना लोगों को प्यार करती है, क्योंकि ये जो शिक्षा है इसमें से प्यार खत्म हो गया है। इसमें से हमारी मेंटल एक्सरसाइज होके हम बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, और बुद्धिमान जो होते हैं वो केवल बुद्धि से काम करते हैं, वो आत्मा उनको छूट जाती है। इसलिए ये जो डिसइंटीग्रेशन है
इसके कारण दुनिया में क्राइसिस है, और ये क्राइसिस भारत में भी है, पर भारत के पास इसके सॉल्यूशन हैं। सुधाकर जी, मैं आपको बता सकता हूं, अपनी आंखों देखी, भारत में अभी भी हजारों जगह हैं जहां कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट करके और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के द्वारा अपने पानी का संरक्षण किया। वहां मरी हुई सूखी नदियों को भी जीवित कर लिया और अपने गांव को भी जीवित कर लिया। वो लोग जो बेपानी थे, जो विदाउट वाटर डिस्प्लेस हो गए थे, वो दोबारा से पानीदार बनकर अपनी जमीन पर बस गए। और ये इसलिए हो पाया इंडिया में क्योंकि इंडिया कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट में अभी भी ट्राइबल और गांव के लोग विश्वास करते हैं, इसलिए हो पाया। लेकिन आज का सिनेरियो देखो, अभी भारत में 17 राज्य और 365 जिले स्केर्सिटी और 190 जिले फ्लड झेल रहे हैं। ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस इसलिए है कि हमारे अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो गए। जब अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट होते हैं तो फिर थोड़े दिन के लिए भी यदि बारिश नहीं हुई तो वहां ड्राउट आ जाता है। आज मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि सीरिया में 4 बार ड्राउट आया, इसलिए लोग उजड़ गए। मैंने कहा नहीं, सीरिया में ये ड्राउट क्यों आया इसको समझना चाहिए। सीरिया में ड्राउट आया था, मैं 2015 में अक्टूबर में पहली बार सीरिया गया था, तो मैंने कहा कि मैं इस पूरी यूफ्रेटिस नदी को देखना चाहता हूं। तो मेरी यात्रा अंकारा शहर में टर्की से ऊपर शुरू हुई। मैंने देखा कि अल्टाटुर्क ने 6 बड़े लार्ज डैम बना के यूफ्रेटिस नदी पर पूरी नदी को सुखा दिया। और ये जो सीरिया है, ये तो खेती के मामले में 12,000 साल पुराना देश था। वहां की महिलाओं ने खेती करना शुरू किया था। ये सारे लोग जंगल में शिकार करते थे, लेकिन इन औरतों ने कहा कि नहीं, हम जमीन पे पैदा करके खाएंगे ना। तो वहां की औरतों ने खेती करना शुरू किया, और फिर वो खेती का उस जमाने में अपनी जो उनकी जो सभ्यता थी, सबसे समृद्ध सिंचाई और खेती दोनों उस देश में होती थी। अब उनके पास पानी नहीं था। जब ये यूफ्रेटिस नदी का सारा पानी सीरिया में रुक गया तो ये लोग बेचारे लाचार, बेकार, बीमार होकर उजड़ने लगे। अभी मैं इराक तक गया। इराक में जो बगदादियों ने, जब ये लोग अपना घर छोड़ने लगे तो इन्होंने सीरियंस पे हमला करना शुरू किया। अब उस हमले के कारण इसको शिया सुन्नी की लड़ाई कहते हैं। कोई भी आज तक ये नहीं कहता कि सीरिया की लड़ाई पानी की लड़ाई थी। पर मैं वहां जाके जब मैंने पूरा देखा, और एक बार नहीं 3 बार गया, तब मुझे पता चला कि आज दुनिया में जो लड़ाई चल रही है, ये पैलेस्टीन और इजराइल की लड़ाई भी पानी की लड़ाई है। ये सूडान और साउथ सूडान की लड़ाई भी पानी की लड़ाई है। ये जिम्बाब्वे की लड़ाई भी पानी की। जितनी भी लड़ाइयां अब चल रही हैं उनके उनके रूट में पानी है कहीं ना कहीं। दूसरी चीजें भी हैं, और चीजें भी हैं, लेकिन पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यदि हम साइंस को और टेक्नोलॉजी को दोनों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो जैसा 2019 से लेकर अब तक हमारा जो अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो रहा है, वो ये सिनेरियो है। आप देख लीजिए, ये स्लाइड दिख रही है आपको। तो ये जो ओवरड्राफ्ट हो गया है एक्सट्रीमली, उसके कारण जब बारिश नहीं होती तो ड्राउट आ जाता है और इस बात को लोग समझते नहीं है। इसलिए हमें यदि वाटर की गवर्नेंस समझनी है तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो रेन्स है, और ये जो सरफेस का फ्लो है, और ये जो अंडरग्राउंड फ्लो है, जो नदियों में बहने वाला फ्लो है, इसका क्या रिश्ता है। इस रिश्ते को जानेंगे तो हम आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों, हमने केवल ये जो स्लाइड्स हैं, ये जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर है वहां एक डैम बनाया, और फिर दूसरे डैम जहां मिक्स फ्रैक्चर हैं, अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर वहां दूसरे। तो इस तरह से जब हमने मैंने 14,800 डैम बनाए हैं अभी तक पिछले 42 सालों में। इन डैम ने अंडरग्राउंड एक्यूफर को रिचार्ज किया, और अंडरग्राउंड एक्यूफर रिचार्ज होने के कारण जो उसका एवोपरेशन था वो रुक गया। तो जब एवोपरेशन रुक जाता है तो आपका वाटर बैंक में डिपॉजिट हो जाता है, उसमें से लूज नहीं होता। फिर जब आपको जरूरत होती है तो आप उसको उपयोग कर सकते हैं। तो हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को जोड़ा और ये जियोलॉजी को समझ के जोड़ा,
और मिट्टी की जो कंडीशन है, जो उसकी टाइपोलॉजी है, उसको समझकर हमने वाटर बॉडीज क्रिएट की। इंजीनियर अपने इंजीनियरिंग से साइट सिलेक्शन करता है। जियो हाइड्रो साइंटिस्ट के साथ इंजीनियर बैठकर यदि साइट सिलेक्शन करेगा तो अंडरग्राउंड एक्यूफर में जो ऑलरेडी हमारे डैम है उनको ठीक से यूज कर सकेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आज भारत को यदि पानीदार बनना है तो हमारी जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी और हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी इंजीनियरिंग, इसको इंटीग्रेट करके कुछ काम करना होगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूं, ये जैसलमेर की स्लाइड है। जैसलमेर में 400 साल पहले तक 1500 ऊंट और 200 लोग रोजाना व्यापार के लिए जैसलमेर से जाते थे। यू कैन इमेजिन हाउ मच वाटर वी नीड। और लोएस्ट रेनफॉल इन जैसलमेर। सो ये गढ़सीसर ताल में जब ये हाथी डूब जाता है, हाथी पानी के अंदर होता है, तब एक अनाउंसमेंट होता है, हाथी डूब गया। इसका मतलब है कि आपके पास 1500 ऊंटों के लिए 10 लीटर पानी साल भर का, 10 लोटा पानी साल भर का मौजूद है और 5 लोटा पानी आदमी के लिए मौजूद है। तो एक तरफ हम लोग कंजर्वेशन करते थे और दूसरी तरफ डिसिप्लिन यूज ऑफ वाटर। वी हैव द स्किल एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। सो हम यदि इस तरीके से आगे जाएंगे तो देखो, हमारे गांव के अनपढ़ इंजीनियर हैं ये लोग, इन्होंने सब गांव की रिसोर्स मैपिंग करके साइट सिलेक्शन किया और ऐसी साइट बनाई जिससे कम मटेरियल में और नेचुरल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को यूज किया। आप देख रहे हैं स्टीप स्लोप पर कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम बनाए और जहां जेंटल स्लोप है वहां सीधे डैम बनाए और जहां नेचुरल डिप्रेशन है वहां कॉन्केव डिजाइन के डैम बनाए। तो हमने अपनी साइट्स में हमेशा द कंसर्न विद नेचर एंड ह्यूमन नीड, इन दोनों को विद कॉन्शियसनेस एंड कंसर्न हमने यूज किया। उसके कारण हमारे 14,800 डैम ने 2.5 लाख वाटर पॉइंट्स को रिचार्ज किया, कुएं, बोरवेल, ट्यूबवेल, और उनके रिचार्ज होने से आज मैं कह सकता हूं सुधाकर जी, 12.5 लाख युवाओं को जो पहले डिस्प्लेस हो गए थे वो अब अपनी जमीन पर जाके खेती करते हैं और बंदूकें छोड़कर खेती करते हैं। बंदूक छोड़ने वाले तो कुल 2700 हैं, 2700, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो शहरों में ऐसे ही चले गए थे खेती करने के लिए, खेती नहीं होने के कारण वो वापस अपनी जमीन पे आके खेती करने लगे। ये जो इकोनॉमिक चेंज है, ये इकोनॉमिक चेंज वायलेंट इकोनॉमिक चेंज नहीं है। ये इकोनॉमिक चेंज अडानी नहीं बनाता है, इससे कोई अडानी नहीं बनने वाला। इससे बन सकता है तो विवेकानंद कोई बन सकता है, कोई महात्मा गांधी बन सकता है, ऐसा तो जरूर हो सकता है इस तरह के काम से, पर इससे कोई कभी अडानी नहीं बनेगा। अडानी बनता है वायलेंट इकोनॉमी से। तो आज जो हमारी इकोनॉमी है वो वायलेंट है, इसलिए हमें नॉन वायलेंट इकोनॉमी पे जाना पड़ेगा। और ये जो नॉन वायलेंट इकोनॉमी होती है ये सर्कुलर इकोनॉमी होती है, ये कभी मरती नहीं है, ये सनातन होती है। और सनातन का मतलब है सदैव नित्य नूतन निर्माण। सनातन केवल रिलीजियस वर्ड नहीं है, सनातन का अर्थ है चरे वेति आदि अनंतः, न जिसका कभी आदि होता है ना कभी अंत होता है, वो चलता ही रहता है, वो चलता ही रहता है। ऐसा पुनर्जनन, ऐसा रिजुविनेशन इस नॉन वायलेंस इकोनॉमी से होता है। इसलिए तुम देखोगे हमारी ये सब नदियां सूख गई थी और हमने सिंपल द साइंस विद सेंस एंड साइंस विद कॉमन सेंस यूज की। जहां पानी दौड़ता था वहां चलना सिखा दिया और फिर उसका डैम बना के रिचार्ज कर दिया। आप देख रहे हैं इन स्लाइड में, रिचार्ज होने के कारण ये जो सारे हमारे डैम थे उन्होंने जब रिचार्ज बढ़ाया तो जो हमारी सूखी हुई नदी थी वो नदी बहने लगी। आप देखो ये नदी है, जब 1985 में जब पानी नहीं था तो गांव के लोग इस नदी को सड़क के मानकर इस रास्ते से बाहर जाते थे। अब ये नदी बहने लगी, वह पहाड़ हरा हो गया, नदी बहने लगी, दोनों तरफ जमीन पे खेती होने लगी। ये दोनों फोटोग्राफ एक दिन के हैं, 15 साल पहले और 15 साल बाद। 20 फरवरी में हमारी सरसों पे फूल आता है, फ्लावरिंग होती है, पकती है, और फरवरी में थोड़ा ठंड होती है, कपड़े लपेट के जा रहे हैं। तो ये जो फोटो हैं ये
फोटो पॉइंट मॉनिटरिंग है, देख सकते हैं, इसको कोई कहने की जरूरत नहीं। जब पानी का काम नहीं हुआ था, जब ये नदी ऐसी थी, अभी ये नदी पूरी साल बहती है, ओवरफ्लो करती है, डैम के ऊपर से बहता रहता है पूरे साल पानी। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन अनपढ़ लोगों का परिवर्तन है, जिसको आपकी रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद ने प्रूव किया। द रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद बताता है कि पहले 16 मार्च 1994 में जब थोड़ा काम हमारा हो गया था, तब केवल इतनी हरियाली थी। 20 मार्च 2014 को पूरा लाल जो दिख रहा है वो ग्रीन है और पानी है। तो ये साइंस और अनपढ़ लोगों की समझ दोनों की एक लेवल पे होती है। साइंस केवल कैलकुलेशन बताती है, डेटा देती है, इक्वेशन फ्रेम करती है, साइंस कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाती है। अनपढ़ लोगों के पास वर्ड नहीं होते वोकेबुलरी में, वो अपनी बात को दूसरों को नहीं सिखा सकते। पर मेरा टीचर अनपढ़ था, उसने मुझे जो ज्ञान दिया, उसके कारण मैं दुनिया में पानी का काम कर पाया, ना केवल भारत में। इसलिए ये जो काम है, एक गांव से शुरू हुआ था, रिवर बेसिन लेवल पर हमने रिवर पार्लियामेंट बनाई, और फिर इस काम को करने के लिए लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद रेन पैटर्न। यदि आप गवर्नेंस समझना चाहते हैं, तो पानी की गवर्नेंस एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। हमारा सबसे ज्यादा पानी एग्रीकल्चर में खर्च होता है, इसलिए हम एग्रीकल्चर का जो क्रॉप पैटर्न है उसको रेन पैटर्न के साथ जोड़ देंगे। सुधाकर भाई 40% लेस वाटर में उतना अन्न उत्पादन कर सकेंगे जितना आज हम 84% पानी यूज करके करते हैं। लेकिन हमारे देश का कोई नेता अपने किसानों के साथ ये बात करने को तैयार नहीं है, और किसान भी नहीं है। इसलिए ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस को लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद रेन, ये मेरे गुरुजी हैं, ये जो नंगे बैठे हैं। पहले ये साल में 2 बार नहाते थे, होली और दिवाली को। अभी रोजाना दिन में 2 बार नहाते हैं। जब घर से गाय चराने जाते हैं, तब वो सुबह नहा के जाते हैं, तालाब में गुच्चक लगा रहे हैं, और फिर जब शाम को वापस आते हैं तो भी बिना साबुन बिना तेल के। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है, ये समझना जरूरी है। पहले 1985 में मेरी मिट्टी का सिनेरियो ये था, अभी वहां पानी हरियाली हरियाली दिखती है। उस जमाने में जयपुर के लोग हमें रोजगार देते थे, आज हम जयपुर के लोगों को रोजगार देते हैं। दिस इज द बिग चेंज। ऑल ट्रांसपोर्ट जो ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनको हमारी खेती में रोजगार मिल रहा है। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी बात मैं खत्म करना चाहता हूं। 2-3 स्लाइड और हैं, मैं जल्दी दिखाता हूं। देखो, ये जो सूरज है ये रेड हीट है, और ये जो समुद्र है इसमें ब्लू हीट हो जाती है, और ये सारा पानी बादल बन के हमारे लिए लेके आता है। ये बादल हरियाली के ऊपर आते हैं, जैसे ही ये बादल हरियाली के ऊपर आते हैं तो बरसने लगते हैं, और फिर ये आर्टिफिशियल माइनिंग के कारण जो हीट थी वो आने लगी, और फिर ये जो पूरी धरती थी पानी से हरी भरी हो गई। उस जमाने में हमारे यहाँ बारिश नहीं होती थी, तब हमारे यहाँ एक गीत गाते थे, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ हम नहीं जानते। अब हमने क्या किया, जहां जो हरियाली पे पानी बरस रहा है, इसको डाइवर्ट करके अपनी वाटर बॉडीज में ले आए। अब हमारी वाटर बॉडी भरी, तो यहां से माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हुआ। ये जो माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन है, इसने मैक्रो क्लाउड्स को बुलाना शुरू किया, और अब हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है। दोस्तों, मैं एंड करता हूं इस प्रेजेंटेशन का। थैंक यू वेरी मच। मैंने ज्यादा टाइम लिया, मैं क्षमा चाहता हूं, पर मैं बीच में रोक नहीं पाया। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much. It's a very compelling story of how, based on community wisdom, coupled with science and technology, we can address the water problem and its governance in India. I think several crises, as you have mentioned, several disasters that are taking place are happening because the man is not in love with the nature. Once that love is instilled, I'm sure combinedly together one can find solutions. Sir, your talk has given us a lot of insight into how one should fall in love with the nature and also seek solutions from indigenous knowledge systems. You have cited and invoked Atharva Veda a couple of times, and it is very explicitly mentioned there that those who destroy nature, those who destroy Mother Earth, the Mother Earth will punish them.
I think that is what we have to learn from. And using engineers plus geologists coming together, the geohydrologists plus engineers who use technology, if they come together, I'm sure we can address a lot of problems. But this has got to do with trying to arrive at solutions based on what is needed there. I think you have given several examples of how you have recharged the dams and you have also rejuvenated the rivers. Dry and arid lands have become waterful, if that is a word that we can use, based on your interventions in various places. We have lots of questions to ask you. I am cutting down my summary, and whatever little time that is available now, we will use it for Q&A. I request Professor Prasad to come in, and probably you can take 1.5 questions. And after that, I will come back for some Q&A by opening the mic for the audience. Over to you, Professor Prasad. Thank you. Thank you, Professor Rao. Thank you, sir, for bringing up what we call in our language a very wicked problem. So complicated a problem that it needs so many different ways to get it sorted out from where it is today. And you have initiated a movement in order to do that. Dhanyavad, sir. I think it's a life-changing mission, and we all respect that you moved from Ayurveda to something like this, which has brought so much of immense change. Thank you, sir. Thank you. Welcome. With that, I come to the first question, sir. There are many, but I'm picking up something which is, very critical to the kind of work that you do. And this is about, sir, communication. It's a very complex issue. There are so many things which are known. We know that this is taught in school. We know this is taught in college. We know that water is important, but still we don't do anything about it. Now, how can we change sensibilities of people to bring about, to support the kind of movements that you are discussing, sir? I think, yes, I can say one thing with confidence. The Indian people have love and faith and trust in nature. But today, due to this education system, the broken this love and respect to the nature. So now we can initiate something. If people can go with water where the real clean water and dirty water, so they can visualize and they can उसका विश्लेषण करके उस पे जब वो विश्लेषण करने लगेगा, so they realize it, what is the need and why this dirty water we are creating, and who is the real force we can make this clean water, and we can say we can make a continuous flow in river. You know, when you are the young man, Dr. Prasad, the young men and young girls and young boys going to the walk in the bank of river and enjoying and getting the energy. But today they don't know this enjoyment and they getting the energy. So मैंने एक एक्सपीरियंस किया महाराष्ट्र में. मैंने आओ नदी को जाने एक पहले वेबिनार शुरू की. 10-15 वेबिनार के बाद लोगों ने कहा, oh yes, we can do and we can go to the bank of the river, and they're going and they are understanding and they are making report. And the government of Maharashtra asked us what we can do in Amrit Mahotsav. So I told, if you are really making the Amrit Mahotsav, so you can make some river, you can say, oh, after the independence, we make the river Amrit Vahini. Today is not a single river in Maharashtra where we can go and drink the water. So you can say, oh yes, we can make one river the drinkable. So if we can start this work on this line, I can say very good, very encouraging. The whole government asked me, yes, you can do in 75 rivers. I start on 75 rivers this work. And now is the 108 rivers working with the community, with the people. And we don't take any single pipe from any government. Without money, we creating a status paper on the river, and we diagnose the sickness of the river, where the river is sick, and what type of the treatment we can do. We can do the treatment where we can do the natural treatment, and where need the river ventilator. So where the need the ventilator, we are not touch that river.
we are touching and doing where we can do the natural treatment for the river. So I think this type of the connectivity, if we can create today, so we can make big change. Prasad ji. Thank you, sir. Thank you, sir. I think you have brought out some major points. I remember that some of my cousins go with a mug to the river because they don't know how to take a bath in the river. From there, we are talking about what is happening. And I think you have mentioned this critical point called connectivity and the value of water. डॉक्टर प्रसाद बस एक सवाल पूछ लो, बाकी ये लोग खड़े हैं मुझे बुलाने के लिए. Sure, sir. Sure, sir. Yeah. Yeah. One more last question, sir. Yeah. In the work that you have done, both holistic and community-driven approach is critical. Now, this is something that the current society and system, current management approaches don't incorporate. Now, can you give us a little more insight into how you managed to do this? And what are those key principles? What are those key principles that you used to incorporate holistic and community-driven approach? I tell to you in the key words and the key points. You know, if you have some love and respect of the community, so community is suggesting some things. They can say, oh, we can do that, this is good. So if you catch the points of the community, so community making the belongingness and ownership these way. So if we can make with the connectivity with the community, so community create ownership on that work, on that. So the belongingness and ownership is the great key points where we can make a faith and trust and confidence with the community. So that is the way we can make that. And this is my experience in last 50 years in social work and 41 years in water work. So this is my experience. So, okay, Sudhakar ji and Dr. Prasad. थैंक यू सर. एक लास्ट सवाल है आपसे. ये अपना पूर्व प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने सलाह दिया कि इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर्स एक सॉल्यूशन हो सकता है. इसके ऊपर आपका टिप्पणी. सुधाकर भाई, मैं अकेला आदमी था जब वाजपेयी जी ये बोलना शुरू किया, और वाजपेयी जी ही इज अ ग्रेट मैन. ही इनवाइट मी, व्हाई यू आर अगेंस्ट, यू आर डूइंग वाटर कंजर्वेशन फॉर माय कंट्री, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, व्हाई, but why you are against of that? So I respond very simple way. I told to him, you know, the river have a own ID, and every river have a different water flow and water character. If we can interlink without understanding of the gene pool of river and the gene pool of water and the diversity of the situation, so that is one disaster. And the other disaster is a constitutional disaster. You know, India have a 3 type of the water right. One water right on the government of India. The government of India have the right on the every river flow. Every interstate river flow have only the right on the government of India. And second, the state river and the state rainwater have the state government. And third, our Nagar Palika, municipal corporation and panchayat. So this is the distribution of the right. And the ecological disaster, I can answer in a very short way because this is a very big question. I can say, yes, the linking of river is not solution of my country. Linking our head, our heart and our hand with river, we can rejuvenate the river of this country, and every river can flow in a own ID with cleanness and without obstruction. So that is the solution of my country, not the linking of the river. Sorry, I give the short answer, but this is my problem. My friend. Yes, sir. Thank you. My friend is standing here. Thank you so much. From your busy schedule, we got this time. We want to thank Professor Balasubramaniam also for giving this time. They have a very big program coming up in the next 15 minutes. On behalf of everyone who has joined here and on behalf of ICFAI Group, we want to thank Dr. Rajendra Singh ji for this wonderful story of water management, water governance, and coming together with love for nature is the solution.
And I think there are several examples that you have given. Thank you so much, sir. Thank so you much. very much. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you for joining. This was a very, very important special session. And as part of it, we have allocated more time for the speaker, the leader, Dr. Rajendra Singh ji, to speak. And as a result, we could take very few questions. But what we promise is that some of the other questions that we have, we will write to Dr. Rajendra Singh ji, and we'll try and get some responses and we'll share that with you. It will be very, very interesting and useful for us to go through a summary of this session, which we will provide in the text format. We will also upload a recording of the entire session. And there are huge takeaways and several important reformative suggestions. At ground level, they made a lot of sense, and there are use cases and there are ways for us to tread and follow. I think we will do well to use these suggestions and continue to work for sustainable solutions on the ground, eliciting trust from the community and making sure that community owns up that project. And therefore, one can move from one river to the other river, as in the case of Dr. Rajendra Singh ji. They have rejuvenated 108 rivers so far without actually taking a penny from government. So this is a great mark of leadership and commitment towards the pursuit of coexisting with nature. I think the human pursuit should always be like that, by drawing lessons from our indigenous knowledge systems and also bringing together technology and geologists. Amazing session. Yes, we couldn't get much of opportunity to ask questions, but I think Dr. Rajendra Singh himself is a big river which is flowing very fast. We have tried to take a small mug, dip in the river and collect the water. That's what we could do. Hopefully, we'll come back to you with a little more and one more opportunity to interact with him. Till then, take a break and have a appropriate visit through his website and understand the initiatives. We will also share with you additional details. His PPT is with us. In the next week, when we meet you on 26th of January, 26th of January is not a holiday, it's a Republic Day. In the evening at 6:30, we are bringing Mr. Manish Jain, who's a Harvard-educated investment banker, now turned into an eco-management leader. He's been running Shikshantar, which provides holistic learning models, and how to cultivate, how to build grassroots leadership is the topic. And it's going to be a fantastic session, one more on 26th of Jan. And a similar kind of session we will have on building leaders for NGOs in this country, social sector leader building, that comes in February 2nd. But see you next week at 6:30 p.m. and we'll share the communication with you. Please register and come back. And hopefully we'll have a little more time for the Q&A and interaction. Thank you very much. My apologies if some of you are a little not satisfied having had the presence of Dr. Rajendra Singh ji. Yes, we'll have all the anticipation and expectation to interact as well, but I'm sure we'll look for one more opportunity to get him with your support and with your continued patronage. Thank you all. On behalf of Professor Prasad and everyone here, I want to thank you and would love to see you on 26th Jan.